سب لوگوں نے اپنے اپنے ترک رکھے تھے، باتیں کی تھیں، لیکن ان سب باتوں میں ایک نشکرش رہ گیا تھا نکلنے کے لیے، اور کئی لوگوں نے کہا بھی کہ اس پر بعد میں ایک بات آپ بھی ضرور رکھیے گا، تو میں نے سوچا کہ ہاں، اس پر ایک نشکرش کے روپ میں، کنکلوژن کے روپ میں ایک بات میں بھی ضرور رکھوں گا۔ تو آج اس کو پورا کر لیتے ہیں، زیادہ سمے تو نہیں لیں گے، تھوڑے سمے میں اس کو پورا کر کے پھر آگے سماپت کریں گے، پھر اس پرکرن کو، پھر نیا پرکرن ہم آرمبھ کریں گے۔ جوتی بہن، آپ کو کچھ کہنا ہے اس میں؟ کیونکہ آپ کا بچا ہوا تھا، ایک دن آپ کہہ رہے تھے مجھ سے، ساگر بھائی ابھی کہہ رہے ہیں۔ جوتی بہن، جی ہاں جی، کہیں گے آپ کچھ؟ کیا یہ ٹاپک تھا گاؤں اور شہری کرن؟ ہاں جی ہاں جی، یہی تھا، شہری کرن کو لے کے ہی تھا مکھیہ روپ سے تو۔ جی، تو اس میں مطلب ایک ہی بات کہنا چاہوں گی کہ جیسے اس دن کی جو جو چرچائیں ہوئی اس میں یہ تھا کہ گاؤں کو بڑھاوا دینے کے لیے یا انکم آف سورسز کے لیے، اور کئی طرح کے جیسے کئی طریقے سے مطلب ادیوگ بسانے کے لیے، یہ تو جو جو آئیڈیاز آ رہے تھے وہ اس میں مطلب میں کھنڈن نہیں کروں گی، لیکن اس میں ایک یہ تھا جیسے راجیو دیکشت جی جو کہتے ہیں بھارت کو بھارت کی مانیتا کے آدھار پہ وہ بسانا چاہتے تھے، تو اس میں اسی لائن کو لے کر کے یہ کہوں گی کہ جیسے گاؤں کو گاؤں کی مانیتا کے آدھار پہ بسانا چاہیے، پھر اگر وہ شہر کی طرح ہی ایسا ہو گیا تو پھر گاؤں اور شہر میں پھر کوئی بھید نہیں رہ جائے گا۔ اور جیسے گاؤں آج کل گاؤں پوری طرح سے رہ نہیں رہے ہیں، وہ آدھونیکرن میں وہ بھی پوری طرح سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ گھر، وہاں کے مکان، مین یہاں پہ یہ ہے کہ ایک دکھاوا اور واستو میں آوشکتا ہے کیا چیز، اس پر بات ہونا چاہیے۔ جیسے کہ ہم لوگ ایک ہوتا ہے مطلب آوشکتا سے ادھک چیزوں کا ارجن کرنا، یہ شہری کرن کی طرف لے جا رہا ہے، اور گاؤں بھی اسی پیچھے میں بھاگ رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کھانے کے لیے مول بھوت آوشکتایں کیا ہے؟ پیٹ بھرنے کے لیے مول بھوت آوشکتایں کیا ہے؟ چاول، دال، روٹی، پر ہمیں اتنے میں سنتشٹ نہیں ہے، ہمیں چاہیے پیزا، برگر، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں۔ پہننے کے لیے یا مطلب ایک اچھا سبھی دکھنے کے لیے پریدھان، کتنے پریدھان کی آوشکتا ہے؟ نارمل اگر آپ سال بھر ٹکاؤ اچھے سج دھج کے رہنے کے لیے بھی تو تین جوڑی، 4 جوڑی کافی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پورا کھدان بھرا ہوا رہتا ہے کپڑوں سے، یہ سے، اس طرح سے۔ تو جو آوشکتایں جس طرح سے آوشکتا بڑھ نہیں رہی ہے، اچھائیں اور دکھاوا پن یہ ایک وکرت دشا کی طرف لوگوں کو ڈھکیل رہا ہے۔ جیسے گاؤں میں رہنے کے لیے جتنی آوشکتا ہے اور جیون جینے کے لیے جتنی آوشکتا ہے، گاؤں آپ کا وہ پورا کر دے گا، بشرطے آپ اس میں سنتشٹ رہ پا رہے ہو کہ نہیں، یہ سوچنے والی بات ہے۔ پہننے کے لیے آپ کو کپڑے بھی اپلبدھ ہو جائیں گے، کھانے کے لیے آپ کو کھانا بھی اپلبدھ ہو جائے گا، سونے کے لیے اچھی نیند، پرکرتی کی تازی ہوا، پر کیا آپ اتنے میں سنتشٹ رہ پا رہے ہو؟ اور ایسا نہیں کہ آپ گھر نہیں بنا پاؤ گے، پھر وہاں پہ ادیوگ کو بڑھانا، گاؤں کی طرف لوٹانا کوئی آوشکتا نہیں ہے کہ ہم ان کو للچا کر کے گاؤں کی طرف لائیں کہ ہاں دیکھو گاؤں میں یہ ہے وہ ہے، کوئی آوشکتا نہیں ہے، ویسے لوگوں کو آنے کا ضرورت بھی نہیں ہے، وہ لوگ شہر میں ہی پھر ٹھیک ہے۔ اس ہوڑ میں گاؤں کو بھی پورا ڈھکیل دینا شہری کرن کی طرف سے، یہ میں صحیح نہیں مانتی ہوں۔ بس اتنا ہی، اگر کوئی اور کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد اگر ہمیں کچھ پوائنٹ ملتا ہے تو کہوں گی۔ جی، بہت سندر، آپ نے بھی ایک بڑی اچھی چرچا رکھی ہے۔ چلیے اور دیکھتے ہیں، ابھی جیسے آریش جی ہیں، آریش جی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آچاریہ جی، میں کچھ بولنا چاہتا ہوں۔
हाँ जी, बोलिए। बिल्कुल सही कहा ज्योति बहन ने। लोगों की जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा संग्रह कर रहे हैं वर्तमान में। और पहले लोग होते थे कि कम से कम संसाधन में प्रश्न मतलब खुश रहते थे। उनके घर भले ही उतने अच्छे नहीं होते थे, लेकिन काफ़ी खुश रहते थे। तो इसका जो मूल कारण है, मुझे ये लगता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही हमें पढ़ाया जाता है कि हम मतलब बड़े घर बनाएं, हम कार खरीदें। इस प्रकार की शिक्षा ही दी जा रही है, भौतिकवाद वाली। पहले लोग भले ही कम पढ़े लिखे थे, मतलब आज की भाषा में, लेकिन वो अपरिग्रह का पालन करते थे। तो शिक्षा पे काम होना चाहिए, इस समस्या का समाधान हो सकता है उसका। जी, बहुत सुंदर। सही बात कही आपने। जिस अपरिग्रह की बात हमने पीछे कही थी या जिसकी बात योग दर्शन करता है, यदि वो हमारे जीवन में आने लगे, तो फिर ये शहरीकरण के नाम पे जो इतना कुछ चलता है या आधुनिक विकासवाद के नाम पे इतना कुछ चलता है, तो शायद ये कुछ कम हो। इससे होने वाली जो हानियाँ हैं, किसी भी प्रकार की हानि है वो, उसको उसकी क्षति होगी, उसकी कमी होगी। तो बहुत सुंदर विचार आपका भी है। और वसंत जी, आप भी कुछ कहेंगे? जी, मैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में रहता हूँ और हमारा घर यहाँ पे प्रॉपर मंडला में है। और 30 किलोमीटर दूर हमारे नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी का घर है, देवगांव। तो मैं दोनों शहर को भी अच्छे से जानता हूँ और गांव को भी अच्छे से जानता हूँ। जब मैं गांव जाता हूँ तो मेरे को शहर की याद आती है, क्योंकि शहर में सारी सुख सुविधाएं हैं, इंटरनेट वगैरह सब है, और हॉस्पिटल आदि भी है, शहर में ही है। तो जब गांव जाता हूँ तो मेरे को फिर एहसास होता है कि नहीं, यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल नहीं है, और भी सुख सुविधाएं जो शहर में होनी रहती हैं वो नहीं है। तो वो बात खलती है वहां पे। हाँ, ये बात जरूर मैं मानता हूँ कि हमको संतोष रखना चाहिए, जितना भी है अपने पास उससे संतोष रखना चाहिए। अच्छा, और रुद्री पाठ करके एक जो वेद मंत्र में आता है, श्री रुद्र नमकम चमकम, तो उसका मैं एक लाइन में ऐसा याद किया हूँ, नमकम यानी कि सबका सम्मान करना, किसी का भी अपमान न करना। और चमकम, चमकम यानी होता है सेवनी ऐश्वर्य को होना। तो वेद इसका तो मतलब खंडन नहीं करता कि आप जो है अमीर हो। आप अमीर हो सकते हो और आध्यात्मिक भी हो सकते हो। जी, बिल्कुल। ऐसी बहुत सारी आज्ञाएँ हैं वेद में कि जिनमें हमको ऐश्वर्यशाली होने की परमेश्वर ने आज्ञाएँ दी हैं। परमेश्वर का सीधा-सीधा आदेश हमारे लिए है कि हम सब प्रकार के धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें। तो ऐसा भी नहीं है कि आप विकास की ओर बिल्कुल ना बढ़ें, आप धन ऐश्वर्यों को जुटाने के लिए आगे ही ना बढ़ें। तो परमेश्वर की तो खूब आज्ञा है कि हमारे पास भरपूर सामर्थ्य हो, खूब धन हो, खूब सारा ऐश्वर्य हो, खूब पैसा हो हमारे पास। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। निवेदिता माता जी, आप भी कुछ कह रहे हैं क्या? जी, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी। मैं कहना चाहती थी वही प्रकरण जो हमारा चल रहा था अभी, श्वेता जी ने बहुत बढ़िया कहा, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और ये शहरीकरण, गाँव और बीच में हमारा प्रकरण अभिभावक जो बच्चों पे जो दबाव डालते हैं, और ये जो स्वधर्म की चर्चा भी हमारी हुई थी, इन सारी बातों को मैं एक कड़ी का मतलब एक कड़ी के रूप में मानती हूँ। शहरीकरण और बच्चों की जो समस्या है आज, अभिभावकों की जो समस्या है, और स्वधर्म, ये सारे एक ही कड़ी के हैं सारे मुद्दे। तो मैं यही कहना चाहती थी संक्षेप में, अभी तक जितने लोगों ने बातें की हैं हमारे इस कक्षा में, सभी से मैं सहमत हूँ बहुत हद तक। और मैं मूल रूप से जो मानती हूँ, आज जो भी बिगाड़ आया हुआ है या जो भी समस्या आई हुई है, क्योंकि हम ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। मनुष्य अब ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये जो तीन मूल मंत्र है हमारे वेदों में जो दिया गया है, उससे हम दूर जा रहे हैं। ईश्वर को सर्वशक्तिमान के रूप में स्वीकारना जो है मनुष्य के अब फितरत में नहीं है। और कर्म, कर्म जो
सॉरी, ये कर्म नहीं, ये जीव की बात करती हूँ। जीव जो है कर्म के ऊपर उसे अधिक उसे विश्वास करना चाहिए। तो वो कर्म जो है वो सही मार्ग में हो, वेद अनुसार हो, वो कर्म भी नहीं हो रहा है। और प्रकृति जो हमें संसाधन दे रहे हैं उसका सही तरीके से उसका जो कहते हैं उसका उपभोग करना और प्रकृति का दोहन न करना, इन सब चीजों का ही जो है ना बिगाड़ की वजह से हम इतने कष्ट भोग रहे हैं। पहले अगर हम थोड़ी सी पीछे जाके देखें तो कृषि, व्यापार और नौकरी, ये 3 मूल मंत्र होते थे। जो मतलब पहले मंत्र यानी कि कृषि के ऊपर लोग अधिक व्यवहार और अधिक विश्वास करते थे। उसके बाद व्यापार का होता था और उसके बाद नौकरी। लेकिन आज के समय में नौकरी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया है। और पहले जो हमारा नारा नेताओं ने दिया था, जय जवान जय किसान, हरित क्रांति आई, तब कृषि पर बहुत ज्यादा मतलब सही मायने में शुरुआत तो हुई थी लेकिन पूर्णतः नहीं हुई थी। हरित क्रांति आई तो उसमें क्या था कि हरित क्रांति में हमारी बहुत सारे यूरिया वगैरह की बहुत सारे इस्तेमाल हुई, तो हरित क्रांति के नाम पर बहुत सारा नुकसान भी हुआ। फिर जय जवान जय किसान जय विज्ञान, पोखरण का हमारा वो भी हुआ, टेस्ट वगैरह हुआ। दुनिया में हम अपनी जो है बाहुबल, अपना वर्चस्व दिखा तो लिए। वाजपेयी जी की सरकार के समय में हम बहुत खुश थे। लेकिन उसके बाद फिर हमारा दुग्ध क्रांति भी आई, उसमें भी बहुत बिगाड़ आया, जहाँ पे हमारी जो है देसी नस्ल की गायों को नष्ट किया गया। और फिर हम जो है ये जर्सी के चक्र में हम फंस गए हैं। आज पूरे समाज में देसी देसी गाय और शुद्ध घी तो मिलना ही मुश्किल हो गया है। ये बीटी जो है कृषि औद्योगिकरण ही हुआ था। बीटी जो है बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसके कारण हमारा जो मूल है, जो खाद्य सामग्री हमें मिल रही है, वो शुद्ध रूप में है ही नहीं। अब कहीं आपको शुद्ध मिलेगी ही नहीं। तो ये सारी सारी जो है षड्यंत्र चल रही है, पीछे से चल रही है। इसमें पहले तो विदेशी हैं शामिल, उसके बाद जो है भारत के नेता है। मूल रूप से शुरू से ही है ये बिगाड़। और फिर जनसंख्या की बातें अगर हम करें तो जनसंख्या का जो है हम उस चीज को या वेद की जो आज्ञा है उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये समस्या जो भी आ रही है, ये है हमारी हिंदुओं के बीच में ही या सनातनियों की ही ये समस्या है। आज अगर आप देखें तो ये समस्या मुसलमानों के बीच में और विधर्मियों के बीच में नहीं है। कारण ये है कि उन्होंने कई सारी चीजें वेदों की उठा ली हैं। जैसे कि वो पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। अगर उनके 10 बच्चे होते हैं तो ये तो है कि उनकी जनसंख्या जो है वो हमसे ज्यादा जरूर है, लेकिन वो सारे बच्चे जो है ना अपने पाँव पे खड़े होते हैं। वो माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होते, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता है। और आज जो है भू माफिया हो, आपका वक्फ बोर्ड की समस्या हो, आपकी कोई सी भी हो, कोई भी जगह जो है, मुसलमान ऐसे नहीं है कि आप चाह कर भी, मैं जिस क्षेत्र में हूँ अभी भागलपुर में हूँ, भागलपुर में मुसलमानों की इतनी संख्या है कि मैं चाह कर भी अगर मैं ई रिक्शा लेना चाहूँ, कई घंटों तक मैं खड़ी रह जाऊं, लेकिन मुझे कोई हिंदू ई रिक्शा वाला नहीं मिलता है। मुझे अधिकतर मुसलमान ही मिलते हैं। अगर आप कोई छोटी से छोटी काम ही करो तो मुझे वही देखने को मिलेंगे। और ये समस्या सिर्फ भागलपुर की नहीं है, ये घर घर की यही समस्या है, हर शहर की, हर गांव की यही समस्या है। तो मूल रूप से राजीव दीक्षित जी ने जो बात अभी तक कही थी हम लोगों के बीच में, ये तो पहले ही बहुत सभी लोगों ने प्रचलित किया है, बोला भी है इसके ऊपर में। तो उनका जो आदर्श है वो समाज के लिए बहुत अधिक प्रेरणादायक है। उनका जो कहना था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, उसके ऊपर उनका जो कथन था, मैं कुछ कुछ वीडियो उनकी देख रखी हूँ या सुन रखी हूँ, तो उसमें मुझे जो समझ में आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से हमारा बिगाड़ हुआ है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने क्या किया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे लिए था ही नहीं। वो अपनी फायदा के लिए वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप से वो भारत तक आया। और ये जो रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्री किस लिए जरूरत होती है? जब आपके पास संसाधन नहीं होते, मानव संसाधन नहीं होते। मानव संसाधन जो है यूरोप में बहुत कम है शुरू से ही।
उनकी जलवायु, और हम तो बहुत धन्य हैं कि हमारी इतनी अच्छी माटी है, इतनी अच्छी हमारी ऋतुएं हैं, हमारे पास क्या नहीं है। भारतवर्ष में जो जन्म लिया वो बहुत भाग्यशाली है, लेकिन हमें अपनी चीजें कभी अच्छी नहीं लगी है। इसके कारण जो है हम हमेशा पश्चिमी लोगों को देखकर खुश होते हैं, उनकी गोरी चमड़ी, उनकी संस्कृति, उनकी हर एक चीज। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जहाँ नहीं है, राजू दीक्षित जी ने कहा था कि जहाँ पे जनसंख्या कम है उन्हें अधिक काम लेना है, या फिर उन्हें जो है ना लोगों की कमी है, तब वो इंडस्ट्री वहां चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो जनसंख्या परिपूर्ण थी, कभी दिक्कत हुई ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि वेद के आज्ञा का पालन हम किया करते थे, तब कोई दिक्कत नहीं थी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारा सब कुछ, अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, हमारे अंदर निकम्मापन आया है, सब कुछ हुआ है। औद्योगिकरण हमारे लिए है ही नहीं, हमारे पास पशुधन इतना ज्यादा था कि हर चीज जो है शुद्ध होती थी हमारी। वो जो अब कच्ची घानी वाली जो तेल आती है, आज कितनी भी हो, कच्ची घानी कहते हैं, वो सारी मशीन की होती है। उसमें जो तैलीय जो पदार्थ होता है, जो असली जो प्रोटीन होता है, वो सारा गायब हो जाता है। उसमें मिश्रण करना पड़ता है हाई टेम्परेचर में। वो तेल जब होता है उसमें बहुत बिगाड़ आ जाता है, वो उसमें वो शुद्धता नहीं होती, उसमें कोई लाभ नहीं होता हमारे शरीर को। तो ये है बहुत बड़ी चीज। आज जो है मैं बेसिकली ये जो शहरीकरण, गांव और ये अभिभावक लोगों की समस्या, बच्चों की समस्या, स्वधर्म वाली बातें, इन सबको मैं एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगी कि ये चीजें जो है ना मानसिक है, मानसिक तौर पे ये बिगाड़ आया है। ये शहर में लोग रहकर भी ये गांव की तरह वो मानसिकता से रह सकते हैं, और गांव में भी अभी ज्योति जी ने जो कहा था, गांव में भी रह के लोग जो है मानसिकता के कारण शहरीकरण वो गांव में भी कर रहे हैं। तो ये मानसिकता ही है, शहरीकरण और गांव में रहना, ये सारा कुछ मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है। और स्वास्थ्य और शिक्षा जो है सबसे मूल मंत्र है हमारा। ये सारी जो प्रकरण अभी तक चली है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये मूलभूत चीजें मनुष्य को चाहिए। और स्वाध्याय जो है इसके साथ तभी जुड़ सकता है जब मनुष्य पूर्ण पुरुषार्थ करेगा, और उसके बाद अगर उसके अंदर संतुष्टि उसके बाद आए, वो तभी होगा जब वो स्वाध्याय करेगा। तो वेद तो हमारे तो ज्ञाता भी बहुत कम है, और इसका प्रचार प्रसार तो आर्य समाज जी अभी तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से खूब कर रहे हैं। बहुत लोग ऑनलाइन माध्यम से हम लोग जुड़ भी पा रहे हैं। अब एक निश्चित समय बना लिए हैं कि नहीं, हमारा मन उसी में लगता है, तो धीरे धीरे हम लोगों को जोड़ भी रहे हैं अपने स्तर से। लेकिन ये चीज तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि जब तक हम गाय गंगा गायत्री इसका जब तक हम नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, और गाय को अब जो है पूर्ण रूपेण हम लोग को राष्ट्र पशु का दर्जा जब तक हम नहीं देंगे, तब तक इसके अत्याचार को हम बचा नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं बचा पाएंगे। और अभी तो मैं कुछ दिन पहले बता रही हूँ अपनी मतलब 2 हफ्ते पहले मैं आर्य समाज मंदिर जा रही थी। मैं हर रविवार को जाती हूँ वहां पे, यज्ञ करती हूँ। तो मैं जब जा रही थी तो मेरा जो था जाना जो था वो रूट की मुझे ई रिक्शा मिल नहीं रही थी। तो फिर एक ई रिक्शा वाला दूसरे रूट में जा रहा था, उसमें एक युवक बैठा हुआ था। मुश्किल से उसकी उम्र होगी 21 वर्ष की, तो पढ़ा लिखा बच्चा लग रहा था मुझे। मैंने उससे पूछा, वो दूसरे रूट पे जा रहा था, तो रिक्शा वाले ने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगा उधर। फिर उसने आग्रह किया कि देख लीजिए अगर हो पाए तो इनको ले लीजिए। तो फिर रिक्शा वाले ने मान गया, मैं बैठ भी गई। तो कुछ देर में आगे चलने के बाद मुझे लगा पढ़ा लिखा बच्चा है। मैंने उससे पूछा कि आप कोई जॉब करते हो क्या? तो उसने कहा कि हाँ मैं जॉब तो करता हूँ। फिर मुझे लगा कि वो कुछ हाथ का काम करता होगा। तो फिर उसने कहा, धीरे धीरे बात जब खुली तो उसने कहा हाँ मैं मैकेनिक हूँ। मैं बोली कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास हुनर है कहने लगा। फिर और एक था यात्री, वो भी बैठा हुआ था, तो बातें चलने लगी। तो पहले तो हाथ का काम मैं सिलाई किया करता था, अब जो है मन उब गया, तो अब मैं हाथ का काम, अब मैकेनिक हूँ, मोटर मैकेनिक। तो हमारा एक्चुअल में एक है वर्कशॉप है, मेरे पतिदेव का है वर्कशॉप, उसमें हमें मैकेनिक की जरूरत थी, अभी है नहीं। तो मैंने कहा कि आप जो है आपकी नजर में अगर कोई मैकेनिक हो तो फिर आप बता दीजिएगा। तो वो पूछने लगे कहाँ पर, तो मैंने लोकेशन सारे बताए। तो उस बच्चे ने बताया कि वो अच्छा खासा कमा रहा था, मतलब छोटे शहर में रह के वो 10,000 रुपए कमा रहा है। और मैंने उसकी जब बैकग्राउंड पूछी, थोड़ा पता चला कि वो एक ग्रेजुएट लड़का था,
اس کے بعد بھی اسے کوئی संकोच नहीं था, उसे हाथ का काम मशीन की काम आता था, जैसे कपड़े सिलने का, और उसके बाद उसे जो है मोटर मैकेनिक का भी काम होता. इतना उसके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस, जो मैं खुशी देख रही थी, वो कोई हिंदू बच्चे के चेहरे पे, ग्रेजुएट के चेहरे पे वो मैं देख नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो जो है आप आत्मनिर्भर के साथ में, वो गर्व के साथ. मैंने जब और थोड़ी सी छानबीन की तो मुझे पता चला कि मैं पूछी कितने भाई बहन हो, तो उसने कहा, पहले संकोच में, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, पता नहीं उसके मन में क्या था, उसने कहा कि हम 4 भाई बहन हैं. उसके बाद धीरे धीरे खोलते खोलते खुद बताने लगा कि बहनें भी हैं. कुल मिला के 8 भाई बहन थे वो. और वो, मैं तो यही दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो जिस तरीके से खुश था, या अपने काम से उसे कोई घृणा नहीं थी, इस प्रकार तो हमारे हिंदू बच्चों में कभी नहीं है. कोई भी काम को छोटा बड़ा समझना ही नहीं चाहिए. और ये बातें उन लोगों ने सीख ली क्योंकि वो वेद का के आज्ञा का पालन कर रहे हैं. अब वो जो है पूरी जो है अपने भारत को जो है वो अपने कब्जे में ले रहे हैं. लेकिन इसके अलावा जो है मैं देख रही हूँ, बाकी लोगों को जो मैं देख रही हूँ, हिंदू समाज में जो देख रही हूँ, आज डिप्रेशन के शिकार यहाँ ही होते, नवयुवक होते हैं, बुढ़ापे में लोग यही होते हैं. हिंदू समाज में सनातनी होते, लेकिन मुसलमान नहीं होते डिप्रेशन का शिकार, क्योंकि वो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो अपने मिशन में लगे हुए हैं. हमें निंदा, शिकायत और लोगों की जड़ें काटने के अलावा और कोई काम नहीं है. हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, हम अपनी, जैसे आचार्य जी या गुरु जी कहते रहते हैं कि अपने ऊपर काम करना, हम अपने ऊपर काम नहीं करते हैं, हम लोगों के ऊपर ज्यादा काम करते हैं. यही मेरा सारा कथन, इसी में मैं थोड़ा ज्यादा ही टाइम ले ली, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ. लेकिन मैं ये कई दिनों से मैं चाह रही थी बोलने के लिए. अब आचार्य जी आगे आप मार्गदर्शन करें. जी, बहुत धन्यवाद माता जी। आपने बहुत अच्छे अच्छे इसमें बिंदु रखे हैं, जैसे अध्यात्म को लिया आपने, शिक्षा को लिया, हमारी बढ़ती हुई जरूरतों को लिया, बहुत सारी चीजें हैं. और अपने लोगों का अपने ही काम में रुझान ना होना, उनकी अपनी दिलचस्पी ना होना, रुचि ना होना, श्रद्धा ना होना, तो ये भी एक कारण है कि आज समाज की ऐसी स्थिति है. शहरीकरण उस स्थिति में पहुंच गया है कि जिसको हम एक अलग ही रूप में देखते हैं, और उसका प्रभाव अब गांवों में भी आने लगा है. गांव की भी तो स्थिति अब वैसी होती जा रही है ना. गांव गांव बचे कहाँ हैं. तो अभी बात करेंगे इस पर. अब मुझे लगता है अब आप, कई लोग ऐसे हैं जो अभी फिर से बोलना चाहते हैं इस विषय पर. तो कोई बात नहीं, अभी जब बोलना चाहते हैं तो बोलिए, मैं तो बाद में बोल लूंगा. मेरा क्या है. हाँ जी. आचार्य जी, हम ये कह रहे हैं कि जब ये बात आई थी ना कि लोग शहर जा रहे हैं गांवों को छोड़कर, तो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि गांव छोड़कर इसलिए भी जा रहे हैं क्योंकि जो कृषि करते हैं उनको कृषि के माध्यम से उतनी जरूरतें नहीं, उनकी जो जरूरतें भी होती हैं वो पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि कृषि से उतना उन्हें फायदा भी नहीं हो पाता. जैसे कि सामान्य खेती है किसी की, तो सामान्य खेती है भी तो घर खर्च और लगभग नहीं हो पाता, जहाँ तक हम जानते हैं, देखे भी हैं. तो मजबूरी होती है उनकी जाने की. और जब शहर जाते हैं तो वहाँ बस जाते हैं, और बसने के बाद शहर का तो जहाँ रहेंगे वहाँ का प्रभाव तो होना स्वाभाविक बात है. शहर में रहते हैं, फिर इसके बाद गांव आते हैं, तो शहर में रहकर जो शहर का सीखते हैं वो हम गांव में रहकर भी उसी चीज को अप्लाई करते हैं. तो शहर अब शहर तो है ही है, पर गांव अब गांव रहे नहीं, क्योंकि विचारों से तो गांव भी शहर जैसे मिक्स हो गए हैं. यहाँ पर भी गांव, अब तो गांव लगभग लगते ही नहीं है कहीं से भी गांव, क्योंकि उन पर बहुत सारा प्रभाव है गांव गांव में शहरों का. पूरा मजबूरी है, जहाँ जिससे भी पूछो तो मजबूरी बताते हैं कि कोई भी गांव अपना छोड़कर जाना नहीं चाहता. उनको व्यवस्था हो जाती है कभी कभी जाने की, क्योंकि यहाँ पर कोई कितना भी उद्योग कर ले, वैसे सामान्य खेती का ही उद्योग होता है, पर उससे हो नहीं पाता. उतना अपरिग्रह की बात जैसे करते हैं, तो आवश्यकताओं की भी पूर्ति अगर ना हो सके तो एक व्यक्ति की व्यवस्था हो जाती है जाने की बाहर, तो जाते हैं. यही एक कारण हमें भी दिख रहा है, जिसके वजह से ना चाहते हुए व्यक्ति बाहर जाता है, शहर जाता है, और शहर जाएगा तो प्रभाव तो पड़ेगा ही शहर में. फिर वही गांव पर आते हैं तो वही विचार गांव में भी आ जाते हैं. तो अधिकांश इसी तरह हो गए, मिक्स हो गए हैं ना. गांव गांव अपनी जड़ों को भूल गया है, गांव गांव रहा ही नहीं, और शहर पूरी तरह से बन नहीं सका, इसलिए बीच का हो गया है हमारा. इतना ही हम जब देखें यहाँ पर तो यही दिमाग में आ रही थी बात, की कारण ये भी है
जो शहर पर लोग अधिकांश जा रहे हैं मजबूरी की वजह से भी। बस आचार्य जी इतना ही कहना चाहते थे। हाँ जी। वैसे ये जो आपने कारण बताया कि शहर में मुख्य रूप से कृषि ही एक उद्योग है, व्यवसाय है, जिसको लेके लोग आवश्यकताएं उनकी पूरी नहीं हो रही हैं और वो फिर शहर की ओर पलायन कर जाते हैं, शहरों में जाके बस जाते हैं। लेकिन ये कोई उतना बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि ऐसे खूब सारे लोग हैं जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और गांव को छोड़ के जाना नहीं चाहते। और ये उनके मन में रहता है कि चाहे कुछ भी हो, अब जैसा भी है, हमें तो यही अच्छा लगता है जी, हमें शहर में जाना ही नहीं। जैसे हमारे एक ताऊ जी आए एक दिन घर पे, उनके घर में लड़ाई हो गई उनके बेटों में आपस में, और कहा कि हमें तो अलग अलग कर दीजिए। जब अलग अलग करने की बात आई तो उन्होंने कह दिया ठीक है, कर लो बंटवारा, जिसको जितना चाहिए जैसे बनता है ले लो अपना सारा। तो बड़े बेटे जो थे, उन्होंने बड़े बेटे उनके पास आए, उन्होंने उनसे कहा कि अब पापा आप हमारे साथ चलो, वहीं रहना शहर में ही। तो पता है मुझसे वो क्या कह रहे थे, एकदम बहुत कष्ट जैसी हालत में थे। उन्होंने कहा भाई देखो, जीवन तो अब यहीं जाएगा, अब तो अर्थी उठेगी तो यहीं से उठेगी, गांव से ही। शहर में अपना मन नहीं लगता, वहां छोटे से घोंसले में पड़े रहो, वो छोटा सा घर होता है, छत से नीचे बैठ गए, नीचे से छत पे चले गए, ज्यादा से ज्यादा बाहर बैठ गए, पार्क में घूम लिए थोड़ा बहुत, बाहर सड़क पे घूम लिए, वहां बैठ गए। अब हम जैसे लोग जिनकी जिनका जीवन एक बहुत बड़ा लंबा जीवन गांव में बीता है, कैसे जाके शहर में रह लें? ना भाई, अब तो यहीं रहना है, हम नहीं जा सकते गांव शहर में। आपका शहर आपको मुबारक हो, हमें तो हमारा गांव ही ठीक है, यहाँ कम से कम करते रहेंगे, हाथ पैर चलते रहेंगे, जैसे तैसे करें, कैसे भी करें, लेकिन हम तो यहीं रहेंगे, हम शहर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको शहर रास आता ही नहीं, जिनको शहर की बड़ी बड़ी शोभाएं, बड़ा बड़ा ऐश्वर्य, वो स्टेटस, वो उन्हें अच्छा लगता ही नहीं, नहीं जाएंगे जी। तो केवल ये कारण भी नहीं है कि आर्थिक स्थिति कमजोर है या घर पे उतनी चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो जी चलिए शहर चलते हैं। और भी कई सारे कारण हैं, वैसे आप सब लोग रख रहे हैं, ये भी कारण है उसमें। लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे भी हैं जिनको लेकर काम करना चाहिए, तो शायद शहर की ओर जो पलायन हो रहा है वो रुके और गांवों में वो काम हो। चलिए सागर भाई। हाँ जी जी सौरभ जी। हाँ जी। मेरा मानना था कि मैं इस बात में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि नगर हुए ही क्यों, नगर बनाए ही क्यों गए, जरा उन पे भी चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि नगर बनाए तो इसीलिए गए थे क्योंकि नगर की तरफ जितने भी लोग भागने वाले हैं, 100 में से आप परसेंटेज में अगर निकाल लेंगे तो मेरा मानना है आपको 95% लोग ऐसे मिल जाएंगे जो नगर में जाते ही हैं सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए, और उनको ना तो सुख ही मिलता है ना तो सुविधाएं मिल पाती है, और सिर्फ वो पैसे के लिए इधर से उधर उधर से इधर यही सब काम करते रहते हैं। और भी चीजें हैं जो कि खासकर जो सबसे बड़ी चीजें हैं का अर्थ को लेकर के लोग भागते हैं, लेकिन ना तो बाद में एक बात जब ये निष्कर्ष निकल के आता है तो ना वो अर्थ के ही रह पाते हैं ना किसी को लेकर के रह पाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो रहती है, इंसान पैदा किस काम के लिए हुआ है, जन्म किस काम के लिए है, ये उसको पता ही नहीं है। आत्म उन्नति के बारे में किसी को भी पता नहीं है, भक्ति क्या है पता ही नहीं है, आध्यात्म क्या है ये पता ही नहीं है, और भागे जा रहे हैं, जब बड़े बड़े पड़े हुए हैं, देखो ट्रेन में धक्के खाते फिर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, मुंह के बल फिट जा रहे हैं, लेकिन चलेंगे करेंगे वही। और गांव में आकर के उसके उसके बाद इस तरीके से बातें करते हैं जैसे लगता है हट जाओ, गांव के सब ये सबसे बड़े धन्ना सेठ है। और चीजें यही आती हैं सुन के सबको कि मैंने शहर में बहुत करीब से लोगों को जा करके देखा है, बहुत करीब से, मुंबई जैसे बड़े शहरों में, और उसके बाद दिल्ली जैसे बड़े शहरों में मैंने बहुत करीब से, मैं मद्रास चेन्नई चेन्नई भी गया हूँ एक बार, और मैंने जा करके देखा है लोग वहां धक्के खा रहे हैं, चाय की केतली लेकर के वो पूरे बाजार दौड़ रहे हैं और चाय वहां बेच ले रहे हैं, लेकिन वो अगर चाय बेच करके वहां अपना सब कुछ कर लेंगे, जहां उनको चाय बेचने में शर्म आती है अपने आप से। पता नहीं इस काम को करने में वो क्यों इतना लज्जा करते हैं, मुझे तो स्वयं समझ में नहीं आता। क्योंकि मैं अपने आप को जो बात है, मैं अपने आप को मल्टी टैलेंटेड मानता हूँ, इसलिए मानता हूँ कि मुझे से कोई चीज मैं छूटा ही नहीं है, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक का भी कार्यक्रम करता हूँ, वायरिंग का, उसके बाद मैं फर्नीचर का भी काम करता हूँ, अच्छा खासा मिठाई भी बना लेता हूँ, उसके बाद चाइनीज का भी कार्यक्रम कर लेता हूँ, उसके बाद मैं मार्केटिंग लाइन में काम किया हूँ 2 साल, उसके बाद अभी भी मैं मार्केटिंग लाइन में ही काम कर रहा हूँ एज ए डाबर के डिस्ट्रीब्यूटर के तहत देख लिया जाए तो।
और उसके बाद वर्क आप कितना भी करा लो, फरसा चलवा लो, कुदार चलवा लो, खेत में काम करा लो, ईटा गा ढोवा लो, सब काम करने को तैयार है। लेकिन वो ये सब चीजें उसी व्यक्ति के पास हो पाएगा जिस व्यक्ति को अपने काम से प्रेम हो, मोह अपने काम से हो, जिसको इस चीजों से मोहब्बत होगी, वही व्यक्ति गांव में रुक पाएगा। अन्यथा तो आज तो जैसे मीरा बहन ने कहा ना तो गांव ही बचा है, ना शहर रहा, ना गांव अब गांव बचा है, बिल्कुल बीच वाला होके रह गए हैं सभी लोग। और इन सब चीजों को लेकर के मेरा तो मानना है कि सबसे बड़ा अगर किसी चीज की कमी है वो है हमारी शिक्षा व्यवस्था। दूसरी सबसे बड़ी चीजें यही आती है, शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ दूसरी जो सबसे बड़ी चीज आती है, पैसे का मोह। लोग न जाने क्या पड़े पड़े हुए हैं। कोई कहने को तो हर कोई यही कहेगा, आप किसी भी से सुन लेंगे, उनका सीधा कहना है कि पैसा क्या लाद के लेके जाओगे क्या। लेकिन फिर पूछो कर क्यों रहे हो, जरूरत है। क्यों, आवश्यकता से ज्यादा चाहिए, इच्छाएं ज्यादा है, गाड़ी ले लो, बंगला बना लो, ये कर लो, वो कर लो, और भी चीजें। इन सब पे जब तक व्यक्ति को संतोष, अपरिग्रह, इन सब चीजों का जब तक पालन नहीं करेगा सही सही रूप से, तब तक वो व्यक्ति कभी जीवन में संतुष्ट तो नहीं हो सकता। इसकी गारंटी मैं डंके के चोट पे दे सकता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ धन्यवाद। जी सौरभ जी, बहुत सुंदर। ये भी कुछ पक्ष हैं कि जो वहां पर जाने के लिए मजबूर करते हैं लोगों को, और भी कई सारी लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, उनके भी अपने दर्द हैं, पीड़ाएं हैं कि वो शहर की ओर गए। जैसे बस मैं एक संकेत दे के छोड़ता हूँ, आप लोग उस पर अपने विचार रख सकते हैं, बाद में मैं तो निष्कर्ष के रूप में विस्तार से बात करूंगा ही इसमें। जैसे आपने देखा होगा कि पहले हमारी व्यवस्था जो गांव की होती थी वो कैसी थी, संयुक्त परिवार की थी। आपने खुद ही कहा सौरभ जी ने कि आपका परिवार जो है वो 40-40 लोगों का भी परिवार था, 40 लोगों के परिवार में आप पले बढ़े। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं, अभी भी हैं, और पहले तो खूब हुआ करते थे, बड़े बड़े संयुक्त परिवार। आज परिवार में एक साथ रहना नहीं चाहते हम लोग। जहाँ सब भाइयों की शादी हुई, सबसे पहला विचार यदि कोई आता है, थोड़ी बहुत भी मनमुटाव हुआ, तो सबसे पहला विचार क्या आएगा, यहाँ नहीं रहूंगा मैं, या यहाँ नहीं रहेंगे, या पीछे से देवी जी करती रहेंगी, उनको पिन करती रहेंगी, यही घिसते रहना इनके साथ ही, सबसे ज्यादा आप ही करते रहना इनकी गुलामी, यहाँ से निकल मत जाना कहीं के लिए। अगर बाहर रहते कम से कम हम चैन की जिंदगी तो जीते, आज इनकी गुलामी करते करते ही मर जाएंगे हम। वो उनको भी ऐसा ही लगता है। फिर दोनों ओर से ही होता है ना ये मामला, तो केवल देवी जी ऐसा कहें तो ऐसा ही थोड़ी है, उनकी ओर से भी गलतियां हो रही होती हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं साथ रहना नहीं चाहते, या लड़ाई हो गई आपस में किसी की, भयंकर लड़ाई हो गई, तो सोचा कि चलो सुकून तो मिले, कम से कम जीवन तो अच्छे से चले, यहाँ घुट घुट के मरने से तो बढ़िया, या घिसने से तो बढ़िया है कि एक बार शहर में चले जाएं और वहां अपना जीवन कम से कम चैन से तो बिताएं। और अब वो वहां जब गए हैं शहर में, अपने परिवार से दूर हैं, तो कम से कम रोज रोज की जो वो लड़ाइयां हैं उनसे बच गए हैं। अब अपना छोटा सा परिवार है, पति पत्नी है, एक दो बच्चे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, कुल मिला के खुश हैं। और वो ये मानते हैं कि ये जो खुशी है, ये जो प्रसन्नता है, ये उस वाली से बढ़िया है जहां हम पूरे संयुक्त परिवार में रहते थे, खर्चा भी नहीं चल पाता था, हर छोटी छोटी बात पे कलह क्लेश ये सब चल रहे थे। तो एक ये भी पक्ष है जिसको लेके लोग शहर की ओर भयंकर मात्रा में पलायन कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर भी अपना पक्ष रखें, क्योंकि शहरों में रहने वाली एक बहुत बड़ी आबादी इसी कारण से रह रही है। आचार्य जी, मैं कहना चाह रहा था क्योंकि मैं, जैसा आपने अभी कहा कि आप 40 लोगों के बीच में रहे, तो मैं बता रहा हूँ मेरी घर की जो चीजें पहले थी अब में थी, अब में और पहले में जो अंतर हमने जहाँ तक मतलब अपने आप से सोचा या देखा है, वो अब ये दिखता है ना, जैसे जो सोच मानसिकता की बहुत बहुत जरूरत है। क्योंकि आज लोग अपने मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। और मानसिक स्तर को अगर बढ़ाना है तो मेरा तो मानना है, मानसिक स्तर को अगर बढ़ाया जा सकता है तो सिर्फ आध्यात्मिक चर्चाओं से, और भी जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग चर्चाएं कर रहे थे उन सब चर्चाओं पे, उन सब विचारों पे काम करके ही। और जैसे मेरा जब परिवार बड़े लोगों का चल रहा था, तो उसमें जब जो मेरे सबसे बड़े पिताजी थे, मैं चीजों को अब माफ कीजिएगा क्योंकि बांटने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बांट करके काम करते थे, एक एक करके चीजों को बांट बांट के काम करते थे। जैसे बड़े पिताजी थे, घर की बिजली का बिल भर दिया, चावल भरा दिया। अब मेरे दूसरे नंबर वाले जब बड़े बड़े पिताजी थे, तो वो दाल और सब्जी के खर्चे देख लेते थे। मेरे पिताजी थे तो
ईंधन और आटा के खर्चे देखते थे। उसके बाद जो तेल नमक बचता था वो चौथे नंबर वाले चाचा देखते थे, और बाकी दो जन थे वो किसी कार्य को लेकर के, जैसे किसी भी चीज को कुछ करना है, कुछ बड़ा काम करना है, तो वो लोग उसमें सहायता देते थे, क्योंकि वो दोनों जन हमारे दूसरे नंबर वाले बड़े पिताजी के साथ ही रहते थे, क्योंकि वो दोनों जन अलग धंधा नहीं करते थे। तो इन ऐसे ही लगभग पूरा परिवार चलता था, और परिवार को चलाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का सहयोग रहा तो वो हम लोगों का रहा। हम लोगों का इसलिए रहा कि हम लोगों ने कभी बाहर जाके काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और घर वालों ने लोगों ने भेजने का भी प्रयास किया, तब भी नहीं गए। और ना जाने का ये आशा निकला कि अब तो काम तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अब इच्छाएं जब बढ़ती हैं तब के लिए भागना पड़ेगा, लेकिन अभी तो ऐसे नहीं है, यहाँ से ही सब पूर्ति हो जाती है। और जब ये सम्मिलित चल रहे थे तो उसमें सबसे बड़ा सहयोग था हमारे बड़े पिताजी का, जो हमारे सबसे बड़े पिताजी थे, जिनको अभी एक वर्ष पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। और उनका मानसिक विचार, उनकी विचारधाराएं वो लेकर के उनको जितने मैंने एक जैसे कहते हैं ना, वो घर के श्रेष्ठ जन थे, बड़े थे, तो बड़े रहने का उन्होंने जितने बखूबी साथ निभाया है घर वालों का, मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति इतने बखूबी से साथ तो मेरे घर के और लोग तो नहीं निभा सकते थे जो और है। मैंने अपने बड़े पिताजी को इसलिए देखा कि बातों को समझा करके किसी भी कलह को इतनी आसानी से वो सुलझा लेते थे, इतने अच्छे से बात करके वो झगड़े के कार्यक्रम को तो बिल्कुल इतने अच्छे से समझाते थे, बिल्कुल झगड़ा मतलब चंद मिनटों के सेकंडों में खत्म हो जाते थे। तो ऐसी विचारधाराएं भी होना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत आज के लोगों में बिल्कुल खत्म सी हो चली है। जी सौरभ जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये भी कई कारण हैं इसमें, और भी अच्छा जी, निष्कर्ष के रूप में। हाँ जी, जी आर्यश मैं जी कुछ आप कहिए। बोलना जी आज संयुक्त परिवार के विषय में मैं बोलना चाहता हूँ। आचार्य, आपने जो विषय रखा, तो ये जो है ना, अभी संयुक्त परिवार गांव में खत्म हो रहे हैं तो लोग शहर में जा रहे हैं। लेकिन फिर क्या हो रहा है कि शहर में लोग जा रहे हैं, क्योंकि मैं खुद ही बेंगलोर में 1-2 साल में जॉब किया था, 1-2 साल में रहा हूँ बेंगलोर में। वहां पे क्या होता है कि लोग तो सुख की तलाश में जाते हैं, और मतलब न्यूक्लियर फैमिली होती है वहां पे। लेकिन इसका सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हमारा पड़ोसी भी नहीं जानता है कि हम कौन है, क्योंकि दिखता ही नहीं है। सुबह से शाम तक तो ऑफिस में रहता है, और शाम को घर आता है तो आराम करने के लिए चले जाते हैं। तो इसका जो मुझे ये लग रहा है कारण, संयुक्त परिवार जो टूट रहे हैं गाँव में, क्योंकि मैं भी देखा हूँ कि बचपन में ज्यादा संयुक्त परिवार होते थे, जब तक लोगों के पास मतलब हायर एजुकेशन नहीं थी उतनी। आज हर घर में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी काफी बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो असल में डिग्री तो बढ़ रही है, मिल रही है लोगों को, लेकिन नैतिक शिक्षा की कमी है काफी इसमें। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लोग जो जितने लोग पढ़ लिख रहे हैं ना, उतना ही समाज टूट रहा है। और इस पे यदि काम नहीं किया जाए ना, तो ये टूटते ही चला जाएगा। और पहले क्या होता था, भले ही लोग कम पढ़े लिखे रहते थे, शास्त्र का भी अध्ययन हो सकता नहीं करते होंगे आज से 25-30 साल पहले लोग, लेकिन बहुत सी बातें जो है ना, अपने पिताजी से, अपने दादाजी से कहानियों के रूप में सीखते थे। जैसे कि पाप नहीं करना है, चींटी को नहीं मारना है, पक्षियों को दाना देना है। भले उन्होंने योग दर्शन नहीं पढ़ा हो, सांख्य दर्शन नहीं पढ़ा, उपनिषद नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहुत सारा ज्ञान उनको ऊपर से मिलते रहता था। अब वो ज्ञान ही खत्म हो चुका है, और बच्चे सुबह से शाम तक स्कूल में जाते हैं। वहां पे तो पाप और पुण्य क्या होता है ये तो पढ़ा ही नहीं जाता है बच्चों को। पाप और पुण्य नाम का कंसेप्ट ही नहीं जानते हैं अभी के बच्चे। सब पूछ लीजिए पाप क्या है, और हमें बचपन में बताया जाता था कि इस चींटी को नहीं मारो, चूहे को नहीं मारो, पाप लगेगा, शाम को पौधे को मत तोड़ो। तो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, और मुझे ये लगता है कि शिक्षा पे ही काम करना चाहिए। बस मैं ये इतना ही बोलना चाहता हूँ, फिर मैं बाद में। जी बहुत सुंदर। नैतिक शिक्षा वाली जो आपने बात कही ना, ये बड़ी कमाल की है। और इन सबके मूल में तो शिक्षा है ही, विद्या है ही। कि किसी भी चीज का बिगाड़ आप ले लीजिए, कहीं भी समाज में बिगाड़ हो किसी भी प्रकार का, उसके मूल में है विद्या का अभाव। जब जब हमने विद्या को अलग किया है, जब जब हमने विद्याभ्यास छोड़ा है, शिक्षा को ठीक रूप में समाज में स्थापित करने की बात है, परिवार में स्थापित करने की बात है, हमारे मनों में स्थापित करने की बात है। जब जब वहां से हमने शिक्षा को अलग किया है, विद्या को अलग किया है, तब तब ये बाधाएं खड़ी हुई हैं। तो और भी देखेंगे कि कैसे ये विद्या हम लोगों से दूर हो रही है, और कैसे ये स्थापित हो, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, शहरीकरण बुरा है, बुरा है, बुरा है, शहर के लोग ऐसे हैं,
शहर के लोग वैसे हैं, इस पर बातें ज़्यादा हो रही हैं। मैं चाहता हूँ कि शहरीकरण की थोड़ी अच्छाइयाँ भी देखी जाएँ, वहाँ पर उस रूप में भी बात की जाए कि वहाँ के लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे यदि हम यहाँ एक-दूसरे के माध्यम से इस गूगल मीट पर जुड़े हैं, तो इसमें शहरों की बड़ी भूमिका है। शहरों में ही वो उद्योग धंधे हैं, शहरों में ही वो बड़ी व्यवस्थाएँ हैं, जो इन तकनीकी व्यवस्थाओं को सँभाल रही हैं। यदि वो व्यवस्थाएँ ना हों, वो फ़ोन बनाने वाली कंपनियाँ शहरों में ना हों, वो काम करने वाले वो वर्कर, वो कर्मचारी शहरों में काम ना करें, तो फिर बताइए ये जो तकनीकी सुविधाएँ जो हमें घर बैठे मिल रही हैं, इतनी मूलभूत सुविधाएँ हमें मिल पा रही हैं, इनसे वंचित रह जाते हम। आज कुछ भी आवश्यकता होती है हमें कहीं से भी, तुरंत ऑर्डर कर देते हैं हम, फ़ोन उठाया, गूगल पे गए या फ्लिपकार्ट या अमेज़न आदि पे गए, वहाँ से ऑर्डर किया, चीज़ें 1-2 दिन में हमारे घर में आ जाती हैं घर बैठे ही। जिसके लिए पहले क्या होता था कि कई-कई दिन हमें कई-कई दिन लगते थे शहर तक जाने में, बाज़ार में जाने में हमें काफ़ी समय लग जाता था, कई घंटे हमारे खर्च हो जाते थे। आज गाँवों में बैठकर भी वो सुविधाएँ हमें ऐसे ही मिल जाती हैं। तो शहरों की उस चीज़ पे भी बात हो, उस पक्ष पे भी बात हो, जहाँ से अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बहुत अच्छा चल रहा है काम। और शहर ऐसा नहीं है कि शहर में लोग बदमाश हैं, शहर में लोग केवल प्रकृति को बिगाड़ रहे हैं, केवल वो अत्याधुनिक हो गए हैं, शिक्षित नहीं है, विद्यावान नहीं है, साधक नहीं है। मैं ऐसे कई साधक और साधिकाओं को जानता हूँ, जो शहर में रहते हैं, सच में शहर में रहते हैं। ऐश्वर्य भी उनके खूब ऊँचे हैं। ऐश्वर्य के नाम पे ये है कि अगर आप उनके घर में जाएँ और उनके टेबल पर रखे केवल फूलों को देख लें, जो वो गुलदस्ता रखा होता है, कई के ₹1000 का तो केवल एक गुलदस्ता है उनके घर में। मैं सच में ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ और उनकी स्थिति जो है विद्या की बहुत शानदार, उनकी स्थिति साधना की, उपासना की, योग की बहुत ऊँची स्थितियाँ हैं। सत्य कह रहा हूँ, ऐसे नहीं। तो इसके पीछे केवल ये कारण नहीं है कि कोई लोग शहर में रह रहे हैं तो अब गाँव से जुड़े हुए नहीं है या संस्कृति से जुड़े हुए नहीं है, परंपराओं से जुड़े हुए नहीं है, वहाँ भी निभाते हैं, बहुत अच्छे से निभाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग केवल गाँव में रहते हैं तो महान लोग रहते हैं गाँव में या गाँव में देवता वास करते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप जानते होंगे जो लोग गाँव में रहते हैं, जो लोग गाँव से जुड़े हैं किसी भी रूप में, कैसी-कैसी चीज़ें होती हैं। रूबरू करवाएँगे गाँव की संस्कृति से भी। पिछले दिनों जो आपको वीडियो कॉल से या और बातों के माध्यम से गाँव की एक हसीन कल्पनाएँ आपको करवाई हैं, या जो लोग शहर में रहते हैं उन्होंने इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें गाँव की देखी हैं ना, अब गाँव का वो वाला वातावरण आपको किसी दिन दिखाएँगे, जिसको देख के आपको ये लगेगा कि अच्छा ऐसा भी गाँव में होता है। अच्छा ऐसा भी है इसमें, जो हम हमें बाहर से गाँव की एक सुंदर प्रकृति, सुगंधित वायु, अच्छे-अच्छे लोग, गाँव की एक अलग ही छटा दिखती है, एक अलग ही प्राकृतिक वातावरण दिखता है, सुरम्य वातावरण, सात्विक वातावरण, उसके पीछे कुछ और भी है, कुछ और भी चीज़ें हैं, उस पर भी तो बात होनी चाहिए ना। केवल मैं गाँव वाला हूँ, मैं गाँव में रहता हूँ, तो मैं गाँव का ही महिमा मंडन क्यों करूँ? गाँव की उन चीज़ों पे भी तो बात करूँ जो चीज़ें बहुत खराब हैं, जो चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, है ना? या मैं गाँव में रहता हूँ तो मैं शहर वाले लोगों को क्यों एक अलग दृष्टि से देखूँ? क्यों उनके प्रति एक नकारात्मक भाव अपने मन में लेके आऊँ? तो उस पर भी बात करेंगे हम। मैं चाहता हूँ कि वो पक्ष आप भी रखें। नहीं तो ऐसे-ऐसे लोग भी हैं जो शहर में रहते हैं और शहर में रहकर बहुत अच्छा कमाते हैं। बहुत अच्छी उनकी जॉब प्रोफाइल है, ऊँचे ऐश्वर्य हैं और धर्म के उतने बड़े काम वो लोग करते हैं कि हम गाँव में रहकर आज तक एक काम भी नहीं कर पाए वैसा। उन्होंने बड़े स्तर पर रहकर शहरों में ही बड़ी-बड़ी संस्थाएँ चलाई हैं। चाहे वो आर्य समाज के नाम पे हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम पे हो, किसी भी रूप में व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली वो ऐसा काम कर रहे हैं जो गर्व करने योग्य है। तो ऐसा नहीं है कि शहर में रह रहे हैं तो अब भूल गए हैं संस्कृति को, भूल गए हैं अपनी पुरानी परंपराओं को। आज भी शहर में रहकर कितने ही लोग मिल जाएंगे जो अभी भी पैर छूने वाले हैं, नीचे बैठ के भोजन करने वाले हैं, जो नीचे सोने वाले हैं, सब सुविधाएं हैं उनके पास, प्रातःकाल नियमित उपासना करने वाले हैं, अपने माता पिता का वही आदर और सम्मान करने वाले हैं, वही सब चीजें उनके भीतर भी विद्यमान है अभी भी। तो इस पर भी बात होनी चाहिए। बिगाड़ आए हैं, बिगाड़ बहुत हुआ है, उस पर तो बातें हो ही रही हैं, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा भी पक्ष है शहरों का,
और उसको भी हमें देखना चाहिए, नजरअंदाज थोड़ी करना चाहिए उसको, क्योंकि वहां से हमें बहुत कुछ मिलता है। हम ग्रामीण लोगों को तो कम से कम बहुत कुछ मिलता है वहीं से ही। और आज देखिए जिसकी हम बात करते हैं कि गांव में लोगों की आय कम है, गांव में लोगों की कमाई कम है, इसलिए शहर की ओर भाग रहे हैं। मैं कहता हूँ गांव में अब जो कमाई के साधन हैं, अब जो कमाई की इतनी उत्तम व्यवस्थाएं हैं, बहुत बहुत संपन्न किसान रहते हैं, बहुत भयंकर संपन्न किसान। किसी किसान का लखपति होना पहले सपना हुआ करता था, आज आपको हर दूसरा तीसरा किसान लखपति मिल जाएगा। उसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा खूब मिल जाएंगे। ऐसे लोग जिसके अकाउंट में 1 लाख से ज्यादा पैसे होंगे खूब मिल जाएंगे। हर दूसरा किसान ऐसा ही घूम रहा है आजकल। तो गांव में वो सब व्यवस्थाएं आई हैं, किसी भी माध्यम से आई हो, चाहे उसके लिए कितने भी बिगाड़ हुए हों, चाहे गायें खत्म हुई हो गांवों से, चाहे ट्रैक्टर आए हो, टेक्नोलॉजी आई हो, इतनी भयंकर मात्रा में नीचे से जल निकालने के लिए नए नए साधन उत्पन्न हुए हों, वो एक अलग फैक्टर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन गांव में जो इतनी सारी सुविधाएं हुई हैं, जहां से लोगों की कम से कम आय बढ़ी है, बहुत अच्छी संपन्नता आई है। और पहले उन जो कच्चे मकान थे, जो टपकते थे, कुछ भी होता था, चाहे आज लोगों के पास पक्के मकान हैं, बहुत सारी वो सुविधाएं हैं। जब माताएं नियमित रूप से पहले चूल्हा जला के उस धुएं में उनकी आंखें खराब होती रहती थी, स्वयं भी परेशान रहती थी, आज सबके घर में गैस भी पहुंच रही है, और भी खूब सारी चीजें हैं। ये तो बस मोटी मोटी कुछ बातें बताई हैं। हालांकि ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ट्रैक्टर के बारे में बताया, रसोई के बारे में, ये रसोई में गैस के बारे में बताया, और भी चीजें बताई, इनके नुकसान भी हैं, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन इतनी सारी सुविधाएं ले तो रहे हैं गांव के भी लोग, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ रहे हैं। बुराई भले ही कितनी कर लें शहरों की, भले ही शहरों की कितनी निंदा कर लें, शहरों को एक अलग दृष्टिकोण से देखें, लेकिन जुड़े हुए तो हैं शहरों से, चीजें तो सब वहीं से आ रही हैं, है ना? तो इग्नोर नहीं कर सकते आप शहरों को। वही नए साल वाला मामला जो कल था, हम किसी चीज को केवल एक एक दृष्टिकोण से क्यों देखें? चश्मे में कोई एक लेंस थोड़ी होता है, दूसरा भी तो लेंस होता है, दोनों लेंसों से देखें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस विषय के दोनों पक्षों पर बात करें। और बस जहाँ हानियां हो रही हैं, जहाँ समाज का बिगाड़ हो रहा है, चाहे शहरी माध्यम से हो रहा हो, चाहे ग्रामीण परिवेश में हो रहा हो, कि इस पर कैसे काम करें, ये मुख्य बात है, ये मुख्य प्रश्न है। क्योंकि केवल शहर के लोग नहीं बिगाड़ रहे हैं, या केवल शहर के लोग ही समाज का सुधार नहीं कर रहे हैं, या केवल गांव के लोग ही बिगाड़ नहीं कर रहे हैं, या गांव के लोग ही सुधार नहीं कर रहे हैं। दोनों तरफ, दोनों क्षेत्रों में दोनों प्रकार के लोग हैं। हम यदि शहर में हैं तो हम कैसे चीजों को ठीक अपने स्तर पर कर सकते हैं, मैं जिसको बार बार कहता रहता हूँ कक्षा में, यदि हम भले ही शहर में रह रहे हैं या गांव में रह रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं कर सकते, हम कोई बहुत बड़ा ऐसा सेटअप खड़ा नहीं कर सकते जिससे बड़े बदलाव हों। लेकिन जहाँ हैं, जिस भी लेवल पर हैं, इकाई के रूप में हैं, हम एक यूनिट के रूप में हैं, हम कम से कम वहां तो कुछ करें, हम वहां से कुछ ऐसा तो ठीक करें कि हाँ, कम से कम वो एक आदर्श के रूप में स्थापित हो कि हाँ जी, हमने भले ही कोई बड़े बदलाव नहीं किए, लेकिन हाँ, हमारी ओर से कभी समाज को उतना नुकसान नहीं हुआ, कभी हमने वातावरण को उतना नुकसान नहीं किया जितना बाकी लोग करते हैं। बाकी तो देखिए, जब हमने यम नियमों की बात की थी, तो जब अहिंसा का प्रकरण चला था, तो मैंने आपके सामने रखा था कि कैसे हिंसा में हम सब लोग सम्मिलित होते हैं। केवल हिंसा में वही व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो सीधा गाय का गला काट रहा है, वो तो गला काटता है, वो तो बड़ी हिंसा कर रहा है, लेकिन सूक्ष्म अंशों में हम सब लोग किस प्रकार जिम्मेदार हैं, जो भले ही गांव में बैठे हैं, हम सब लोग कितने बड़े जिम्मेदार हैं गाय की हत्या में। क्योंकि गांव में रहकर भी हम कितना गौ पालन कर पाते हैं, मुझे बताएं कोई गांव में रहने वाले, कितनी गायों की आप रक्षा करते हैं, आप बताएं। गौ संरक्षण के लिए आपने कितने काम किए, जैविक कृषि के संवर्धन के लिए आपने कितने काम किए। आज मैं नहीं मानता कि एक भी किसान ऐसा होगा जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज ना करता हो, जो किसी भी प्रकार से रसायनों का प्रयोग ही ना करता हो, और वो इन सब चीजों का प्रयोग करके शहर को एक अलग ही समाज को एक अलग ही चीजें दे रहा है, जहर से युक्त भोजन खिला रहा है लोगों को। बताइए, ऐसा कोई किसान बताइए। ऐसे हैं, लेकिन वो बहुत कम हैं, अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं ऐसे अच्छे किसान।
तो यदि उस व्यवस्था को हम दोष देते रहें कि शहरों में लोग इतना प्रदूषण करते हैं, कचरा फैलाते हैं, फैक्ट्रियां चलती हैं, निरंतर धुआं निकल रहा है और ये हो रहा है, वो हो रहा है, लोग पानी बर्बाद कर रहे हैं, नदियां दूषित कर रहे हैं, नाले जाके गिर रहे हैं नदियों में, इतना सारा औद्योगिकरण के माध्यम से नुकसान हो रहा है, तो हम अपना भी तो देखें, हम जो गांव में रहते हैं, हम लोग अपना भी अवलोकन कर लें। हम कितना उसकी भरपाई कर पाते हैं, हम कितना वृक्षारोपण करते हैं, या हम वातावरण के शुद्धिकरण के लिए हमारे स्वतंत्र प्रयास कितने हैं, हमारे इंडिविजुअल प्रयास कितने हैं, एफर्ट्स कितने हैं हमारे, इस पर भी तो बात करें ना हम। या इसका हम अवलोकन करें, आत्मावलोकन करके देखें। सबको अपना अपना देखना चाहिए, बाकी तो दूसरों पर तो कितनी भी बातें की जा सकती हैं। हम पहले अपने स्तर पे काम करके देखें कि हम कितना अब तक अपने ऊपर काम कर पाए, या अपने क्षेत्र में हम कितना काम कर पाए इस चीज में। ठीक है जी, तो अभी तो वैसे समय हो गया है और कई लोग अभी हैं जो बात करेंगे, और मुझे लगता है अभी तो इस विषय को आगे खूब खींचा जा सकता है, बातें होनी चाहिए, होंगी, क्योंकि मामला केवल शहरीकरण और ग्रामीणीकरण का नहीं है, मामला है समाज का, मामला है व्यवस्थाओं का, मामला है शिक्षा का, मामला है विद्या का, मामला है संस्कारों का। और मैं चाहता हूं कि जब ये विषय है तो इस विषय को उतनी ही व्यापकता से लिया जाए कि जब ये प्रत्येक पहलू पर काम करे, समाज के प्रत्येक हिस्से पर काम करे, जहां हम केवल ग्रामीणीकरण और शहरीकरण को ही एक दूसरे को दोषारोपण करते ना रह जाएं, या एक दूसरे का महिमा मंडन ना करते रह जाएं, या अपने वाले का ही महिमा मंडन ना करते रह जाएं, कुल मिला के हम उस पर काम भी कर सकें। तो जैसे कई लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे तर्क दिए, बड़े बड़े अच्छे बिंदु रखे, जैसे मुख्य रूप से शिक्षा को लेके एक बिंदु रखा, अध्यात्म को लेके भी एक बिंदु रखा कि वो भी इनमें एक मूलभूत चीज है, उस पर भी हम काम करें। तो ये जो आज एक समस्या है जिसमें शहरीकरण को बड़ा दोष दिया जाता है, उसमें शायद कुछ अंशों में ही सही, लेकिन कुछ तो सुधार हो, कुछ तो अच्छा हो। हम इस पर बात करेंगे, और भी आगे मैं भी रखने का प्रयास करूंगा, जब मुझे अवसर मिलेगा तो बात करेंगे इस पर। तो अभी तो आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आप सब लोग कक्षा में जुड़े, इसके लिए आपका मैं बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से धन्यवाद हमेशा की तरह परमपिता परमेश्वर के लिए, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई इन व्यवस्थाओं में हम सभी लोग जुड़ पाते हैं और ये सब लाभ ले पाते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर पाते हैं। तो परमेश्वर का तो हृदय से खूब सारा धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। हम सभी आनंद में रहें, प्रसन्न चित्त रहें, उत्साहित रहें, और कुल मिलाकर आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद गुरुजी। आप सभी को सादर नमस्ते, बड़ों को चरण स्पर्श। सभी को सादर नमस्ते, धन्यवाद मोहित।